تو وہ اس قسم کی حرکتیں زیادہ کرتے ہیں. سو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی دوبارہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر آج قرارداد بھی پاس کی ہے، اور ہم ایک یکجہتی کا مظاہرہ بھی کچہری چوک میں بھی کریں گے. اور ہمارے تمام جو لوگ ہیں پی ڈی ایم کے، ہم اس بات پہ متحد ہیں کہ یہ حکومت جتنے لوگ گرفتار کر لے جلسہ بھی ہوگا اور اس حکومت کو گھر بھی جانا ہوگا. یہ تمام حرکتیں کر کے یہ اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ ثابت نہیں کر سکتے. اور گوہر نفیس صاحب جو ہیں، وہ جو اس کو جس طرح سی سی پی او لاہور لایا گیا تھا، ایک بدنام زمانہ آدمی جس کو خود عمران خان کی سلیکشن کمیٹی نے اس کو ترقی نہیں دی کہ یہ ایک گندا آدمی ہے. اس کے بارے میں آئی بی کی رپورٹس موجود تھی، اس کے بارے میں جو لکھا گیا تھا آئی بی کی رپورٹ میں ایز اے خاتون وہ بتا بھی نہیں سکتی آپ کو. اور جو کچھ لکھا گیا اس کے باوجود اس کو سی سی پی او لایا گیا تاکہ وہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دے سکے. اور اس کے بعد اسی طرح کا ایک نٹوریس آدمی یہ گوہر نفیس ہے، جو بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ بنی گالا کے احکامات پہ چل رہا ہے، اور وہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے لایا گیا ہے. تو گوہر نفیس صاحب اپنی خاطر جمع رکھیں. آپ کے بڑے جو ہیں وہ بھی نہ پہلے کچھ کر سکے ہیں نہ اب کچھ کر سکیں گے. لاہور کا جلسہ بھی ہوگا، ملتان کا جلسہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس حکومت کو گھر بھیج کے دم لیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ اب اہل حدیث سے ہمارے بھائی انفارمیشن بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ڈی ایم کا یہ جو ایک اتحاد ہے اور جلسے ہو رہے ہیں، یہ اصل میں ایک سلیکٹڈ حکومت سے نجات کے لیے. بجلی ختم ہو رہی ہے، چینی ختم ہو چکی ہے، آٹا مہنگا ہو کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، لوگ غربت کے ہاتھوں خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. ان سارے معاملات کو ختم کرنے کے لیے، عوام کے ریلیف کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہم سارے اکٹھے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد علامہ پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ اور سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب یہ ہمیں واضح طور پہ ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اور اس ملک کی حقیقی جمہوریت کی بحالی جو ہے یہی اصل میں اس ملک کے مسائل کا حل ہے. آج ہم پر ایک سلیکٹڈ جمہوریت مسلط ہے، ہم اس جمہوریت کو نہیں تسلیم کرتے. ہمیں حقیقی وہ جمہوریت چاہیے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کوشش کی تھی، جس کے لیے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، جس کے لیے لاکھوں جانوں نے قربانی دی تھی. اور آج ہم ایک بار پھر بار یعنی سیاسی وادیتی میں پھر رہے ہیں. صبح چلتے ہیں، شام کو سفر وہیں پہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر وہی بات ہو جاتی ہے. ہم ایک حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں تاکہ مضبوط ملک ہو، مستحکم ملک ہو، تاکہ پاکستان کا بچہ امن کی زندگی سو سکے اور ہر آدمی جو ہے یہ اس ملک کا نام دنیا میں روشن کر سکے. ہم پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے آج کا یہ ایونٹ منعقد کیا. اور انشاءاللہ ملتان کے جلسے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ہزاروں کارکنان اللہ کے فضل سے شریک ہوں گے اور اس طاقتور آواز کو اور زیادہ قوت پہنچائیں گے. بہت شکریہ. اب میں جمعیت علماء پاکستان سے اپنے بھائی انفارمیشن. ڈاکٹر جاوید اختر، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء پاکستان پنجاب. پی ڈی ایم کی طرف سے گجرانوالہ کے جلسہ سے تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل رہی ہے. اور یہ فیصلہ جو ہمارے قائدین نے کیا ہے کہ ہم نے پاکستان سے چینی چوروں کو، آٹا چوروں کو اور دوائیں چوری کرنے والوں کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے، اور اس وقت تک تحریک جاری رہے گی جب تک یہ یہاں سے بھاگیں گے نہیں. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اب ان کے گھبرانے کا وقت آ چکا ہے. اب انشاءاللہ ہم نہیں گھبرائیں گے، وہ گھبرائیں گے. اور شاہ اویس نورانی کی قیادت میں جمعیت علماء پاکستان کے کارکن پورے ملک میں اس تحریک میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ ملتان کے جلسے میں ہمارے جنوبی پنجاب سے تمام اضلاع سے لوگ بھرپور اس میں شرکت کریں گے، اور جو بھی فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں گے اس پر عمل کیا جائے گا. اور ہم پی ڈی ایم کے قائدین کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان کسی بھی کام میں پیچھے نہیں رہے گی. میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मोहम्मद जमशेद अजमल मेरा नाम है, जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मुल्तान सेक्रेटरी इत्तलात क्या PDM के जो तहरीक शुरू हुई है, कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब उसके सरबराह हैं, और इंशाअल्लाह जिस तरह PDM के जलसों में आपने देखा, गुजरांवाला का जलसा हुआ वो भी कामयाब था। गुजरांवाला के बाद जो कराची में जलसा हुआ वो गुजरांवाला से ज़्यादा कामयाब था। कराची के बाद जो कोयटा का जलसा हुआ वो पिछले 2 जलसों से ज़्यादा कामयाब था। इंशाअल्लाह मुल्तान का जलसा भी आप देखेंगे कि पिछले तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ेगा। PDM के तमाम जमातें, PDM के सरबराह कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में मुत्तहद हैं। ये जो खबरें फैला रहे हैं कि इनमें दराड़ें हैं, ये सारी झूठ हैं। इंशाअल्लाह कायदे जमीयत के हुक्म पर पूरा जनूबी पंजाब PDM का जलसा 30 नवंबर वाला कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। अब करने जी सवाल आते हैं। आपने फरमाया है कि एक बंदे की गिरफ्तारी से जलसे नहीं रुकते, ये आम सी बात है, गिरफ्तारी होगी, कोई मसला नहीं है। बड़ी हैरत की बात है कि ये वो मौसूफ फरमा रहे हैं जिनके ऊपर खुद के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। ये सारे इश्तिहारी होते हुए वज़ीर आज़म भी बन गए, सदर भी बन गए और वज़ीर ख़ारजा भी बन गए, और अभी तो जो है वो इनके ऊपर पार्लियामेंट हमला केस मौजूद है, इनके ऊपर PTV पे हमला केस मौजूद है, और ये दहशतगर्द हमें बताएंगे कि केस क्या होते हैं, और जो है वो घबराना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे, लेकिन मैं और ना गफ़ार डोगर साहब की हम तो पहले कह रहे हैं कि उनकी इस अरेस्ट से मुल्तान के जलसे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका फाशिस्ट चेहरा जो है, जो खुद पूरा 5 साल हमारी दौरे हुकूमत में हम इनको जलसे सजा सजा के देते रहे। आपके इसी मुल्तान के अंदर आपको याद है जलसा हुआ जिसके अंदर जो है वो एक शख्स जो है बेचारा जान से भी गया, और उस वक्त तकरीर कर रहे थे कुरैशी साहब, और कह रहे थे ठीक है रहने दो नीचे, मुझे तकरीर, हाँ मुझे तकरीर जो है वो पूरी करने दें। नहीं, जो स्टेज पे हुआ मैं उसकी बात कर रही हूँ, और उसके बाद जो धक्कम पेल से लोग जो है वो उसके ऊपर शहीद हुए, वो एक अलग बात है। सो ये कुरैशी साहब तो हमें ना बताएं जलसे कैसे करने हैं और क्या करने हैं। ये हमने इनके पहले भी बहुत सारे लोगों की जिनकी हुकूमतों में ये शामिल थे, उस वक्त भी हमने जलसे करके दिखाए, और अभी जलसा होगा। अच्छा, सब कुछ हमें ही सोच लेना चाहिए? ये हुकूमत काहे के लिए है? पहले तो बात यह है कि सिक्योरिटी ये डाकखाना नहीं है, ये हुकूमत है, इनका काम है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती रही पिछले 5 साल के अंदर। सो हमें डाकखाना ना बने और ना हमें डराएं कि जो है वो ये होगा वो होगा। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, जो दिन आखिरी है वो होगा। इसलिए ये अजीब बात है कि अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन ये जो सारे दंदनाते फिर रहे हैं इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। और कोरोना जो है वो भी इतना सियाना है कि वो सिर्फ अपोजिशन के जलसों में फैलता है। ये खुद जलसे करें, ये खुद, अब इनकी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, रोज़ ये कोई ना कोई तकरीब होती है और बंद जगह पे होती है। ये भी इनको शायद कोई समझा दे, अकल के अंधों को इनको बता दे कि ओपन के अंदर जो है वो कोरोना फैलने का इतना चांस नहीं होता जितना बंद उसके अंदर होता है। हमारे तो हर फंक्शन, हर चीज़ होती ही ओपन के अंदर है। इनकी हर होटल के कमरे में, इनकी कैबिनेट्स के अंदर, इनके जो ये खुद रोज़ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उनके अंदर कोरोना नहीं फैलता। तो फिक्र ना करें, कोरोना जो है वो अगर इनकी तरफ से नहीं फैलता तो हमारी तरफ से भी नहीं फैलेगा। नहीं, ऐसा देखिए, पहली तो बात यह है कि कुरैशी साहब की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है। उनको याद कराने की ज़रूरत है कि कुरैशी साहब 4 महीने पहले ना PTI एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। आपने हमारे बंदे तोड़े, जो आपने जनूबी पंजाब महाज के थ्रू यहाँ कराया था, बिल्कुल वो पैटर्न वहाँ फॉलो किया गया। हमारे स्पीकर्स, हमारे वुज़रा जिन्होंने अरबों रुपए के डेवलपमेंट की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब के दिए हुए फंड से, और अब वो जो है वो उनको ले गए, वहाँ पे वो उनको पट्टे डाले गए, जो वो उनका तरीकाकार है। और उसके बाद जो है वो अब ये जो इकट्ठे किए हुए लोटे हैं उनसे ये जो है वो इनकलाब लाएंगे। तो वो तो इनकलाब देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जहाँ तक बात है, उसमें जो गो स्लो की पॉलिसी है जो 2018 के इलेक्शन में भी थी, कि जहाँ जहाँ हम मजबूत कैंडिडेट्स हमारे पास मौजूद थे, और मोस्टली पंजाब में हम 9 सीटें ज़्यादा थे, कुरैशी साहब 9 सीटें, 25 जुलाई के इलेक्शन में PMLN की ज़्यादा थी, लेकिन आपका जहाज़ चला, आपके टेलीफोनों को काम हुए, गैबी इमदाद आपको आई और हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई। सो इसलिए ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर ये हुकूमत जिसने
आटा 75 रुपए का कर दिया है किलो, जिसने चीनी 115 रुपए की कर दी है, चीनी चोर आ गया है मुल्क के अंदर, और उसको जो है कुछ नहीं कहा जा रहा। ये भी एक मतलब अजीब बात है, जिसने अरबों रुपए की डकैती करी, वो ना एंटी करप्शन को नजर आ रहा है ना हुकूमत को नजर आ रहा है। गफार डोगर साहब, जिनकी कानूनी मामलात है जी, कोई डिस्क्रिपेंसी है एक ट्रांसफर के अंदर, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये तो खैर वो रहने दें। और दूसरी बात, क्या सवाल था आपका? हाँ, इदारों की बात। हाँ, देखिए कुरैशी साहब की जहाँ जहाँ याददाश्त कमज़ोर हो रही है, वहाँ वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको बातें समझने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। तो वो उनको जो है वो पूरे पाकिस्तान को समझ आ गई कि मरीम नवाज़ ने क्या कहा और पीडीएम का प्लेटफॉर्म क्या कहता है। हम कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि अगर ये अजीब बात है कि आपको लाने के लिए किसी की मदद मिल जाए वो ठीक है, आपको भेजने के लिए किसी की मदद आनी चाहिए तो वो बहुत गलत है। और मज़ाकरात सिर्फ इस बात पे होंगे कि भाई अपना अपना काम करो, तुम्हारा सियासत में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, यही बात पे मुज़ाकरात होने हैं। और मुज़ाकरात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे, अवाम के सामने होंगे, और कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात कतन नहीं होंगे। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन करके अगर हुकूमत वाले खुश होना चाहते हैं तो चलें, उनको खुश हो लेने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। जी बिल्कुल, हम जो है वो वक्तन फ़वक्तन अब यहीं आपसे मिलेंगे। और 25 नहीं, हम बाकी ज़िला में भी जा रहे हैं। 26 तारीख को मैं खुद मुजफ्फरगढ़ जा रही हूँ, और हम 25 के बाद ऑनवर्ड यहीं पर इंशाअल्लाह ताला 5-6 दिन यहीं मौजूद होंगे। और जो है वो इस जलसे के लिए यहाँ पर जो पीडीएम की क़यादत है वो भी यहाँ मौजूद होगी, और एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर, एक मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल के साथ इंशाअल्लाह 30 के जलसे में जो है वो जो पीडीएम का अगला पड़ाव है उसको पार करेंगे। और उसके बाद बहुत बड़ा पड़ाव लाहौर का जो है उसको पार करना है हमें इंशाअल्लाह ताला। और लाहौर के जलसे की जो है वो, जब लाहौर का जलसा होगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जब लाहौर जागता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जागता है और हुक्मरान भागता है, तो वो होगा। जी बिल्कुल करेंगे, जी बिल्कुल खिताब करेंगे। मियाँ साहब तमाम जलसों में खिताब करेंगे। कराची के जलसे में उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, एक दिन का वक्फा था सिर्फ, और गले में उनकी सोजिश थी, और ये बात पहले से पूरी पीडीएम की लीडरशिप को मौजूद थी। लेकिन उसके अंदर भी कॉन्स्पिरेसियाँ घड़ने वालों, तो मैंने कहा कि इन बेचारों के थोड़े दिन हैं, अगर ये खुश होना चाहते हैं किसी गलत फहमी पे तो होने दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये हम तय करेंगे जी, ये अभी नहीं बताया जा सकता, ये तय करके बताएंगे आप। कल DGISPR मार्कअप उठाओ जारी किया है कि 30 दहशतगर्द जो है इंडिया से पाकिस्तान में कचहरी। आप हज़रात से ये पूछना नहीं, गाड़ी मेरी है ना, मैं अपनी गाड़ी, हाँ कमाल है मेरे पास।